everyone, welcome back to our channel, and today we are going to start our first chapter of our geography book, and the class is 8th and the name of the chapter is resources. So in this chapter basically we will learn about the meaning of resources, how the resources are classified into different categories. Then we will learn about the human resources, and the last one is conservation of resources. So let's start with the first topic. As you can see in this picture, 8th class, this is the picture of Earth. Earth is our planet where survival is possible only. So Earth is a unique planet we have, and because of air, water, suitable temperature, we have our life on this planet. And इस planet पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो available हैं. Like you can see the picture like air, oil, rocks, minerals, sun, soil, plants and so many things. Maybe जिसको मैं यहाँ mention नहीं भी कर पाई. So all these things, whatever value, इनकी कुछ भी value हो, but all these things are important for us, and directly or indirectly we are dependent on these things. Yes, so resources क्या हैं 8th standard? It's very simple. Anything that satisfy our needs. अब कहीं ना कहीं we are connected with all these things. If we see this picture, then you can see the wood log is given here, and it will definitely convert it into furniture, and furniture is used at our homes also. So we can say that resources kya hain? So let's see the definition that is given in your NCERT book. Here the first question is given, what is a resource? So anything that can be used to satisfy our needs is a resource. So कुछ भी resource हो सकता है. Even right now we are using the basically for our education, for our learning process, we are using internet, Wi-Fi, mobile phones and so many things. So all these are resources for us. You can see the picture is given here, water, books and the laptop. Right now at this period, at the COVID pandemic time, people are using and people are dependent on internet. Yes, for education, for their meetings, for their work. So we can say all these are resources because these things can be used to satisfy our needs. Okay. Now, the next thing is very important, that utility or usability. What things, कौन सी चीज को बच्चा हम बोलेंगे कि that particular thing is a resource. So definitely utility जिसकी होगी, utility की हिंदी word is उपयोगिता, यानी जिसका हम इस्तेमाल कर सके, जिसको हम use कर सके. अगर हम उसको use करते हैं तो उस object को हम resource बना देते हैं. So let us take an example now. अगर हमारे पूरे अर्थ पे जहां लाइफ पॉसिबल है, ह्यूमन बींग्स ना होते, प्लांट्स होते, माउंटेन्स होते, वाटर, मिनरल्स, एवरीथिंग, सब कुछ होता, बट ह्यूमन बींग्स ना होते. सो हाउ कैन यू से दैट कि वो सब माउंटेन्स, वाटर, वॉट एवर द थिंग्स आर अवेलेबल, वो रिसोर्स कहलाते? नो, दे आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग्स यूज ऑल दीज थिंग्स. तो क्योंकि उनमें यूजेबल वाली वैल्यू है एंड पीपल आर यूजिंग दोज थिंग्स, that is why these substances, or we can say the objects, become a resource. Is that clear? Now the next one is value. So value किसमें होगी? अब वैल्यू दो तरीके से हो सकती है. वैल्यू एक हम बोलते हैं कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी वैल्यू टर्म को यूज कर सकते हैं, but here we are covering the chapter resources. So let's understand this term with the help of resources only. So some resources have economic value. As you all know, 8th class, what does it mean? Economic value means कि उसकी कुछ पैसे वाली वैल्यू है, कि उसको हम अगर परचेस करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू, हमें उसको मनी की फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं, लाइक वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ डीजल, पेट्रोल,
So all these things have economic value, but some do not have economic value. Like आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्यूटिफुल लैंडस्केप. इफ वी आर गोइंग प्लानिंग टू गो और विजिट एनी हिल स्टेशन एंड द ब्यूटी ऑफ द हिल स्टेशन हैज नॉट एन इकोनॉमिक वैल्यू हियर. उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट दे हैव अ वैल्यू जो हमें सेटिस्फाई करा रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग देयर. हम वहां क्यों जा रहे हैं? टू ब्रेक फ्रॉम आवर वर्क, कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, हम वहां जा रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स गिव्स अस एक ह्यूमन नीड्स की जो एक सेटिस्फेक्शन है वो हमें मिल रहा है. सो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब चीजों की, सब ऑब्जेक्ट्स की, सारे सब्सटेंसेस की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू हो. वी कैन कैलकुलेट और वी कैन डिस्टिंग्विश, हम इनको अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, जिनमें इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है और एक में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. सेटिस्फैक्शन की उसको देख के हमें एकदम रिलैक्स हो गए. हाँ, जो हमें डिप्रेशन हो रहा था काम कर करके, वी ऑल आर टायर्ड, तो हमें एकदम एक अच्छा वाला रिलैक्सेशन पॉइंट आ गया. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक हियर. लाइक हम लोग स्कूल्स में जब स्कूल आ रहे थे तो स्कूल में सबका रेगुलर स्टडीज एंड ऑल 8 पीरियड्स, बैक टू बैक यूटीज, एनुअल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, रिजल्ट. लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? पिकनिक अरेंज करते हैं, ट्रिप्स अरेंज होते हैं. तो क्या उसकी कुछ वैल्यू है? हम वहां जाएंगे तो हमें पॉकेट में कुछ मिलेगा? नो, बट दे आर गिविंग अस सेटिस्फैक्शन. So we can say each and everything has value. Some have economic value and some have satisfaction value, जो कि हमें कोई beautiful places दे सकते हैं. So these things are very important regarding to resources. First one is utility and second one is value. Okay. Now one glossary is given in your NCERT book. You can see in your book also. One term is given, that is patent. इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे अपने एक स्टोरी के साथ. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. सो अगर आपका कोई, आपने आइडिया, आपने कुछ इन्वेंशन कर दी है तो आप उस पर पेटेंट ले लेते हैं, लाइक कॉपीराइट, कि वो मेरा हो गया, मेरा ही उस पर नेम है. सपोज कोई सॉन्ग किसी ने लॉन्च किया, कोई सॉन्ग बनाया, कोई लिरिक्स दिए, तो देखा ना हमने यूट्यूब पे आजकल कॉपीराइट वाला एक टर्म यूज किया जाता है. कॉपीराइट मीन्स कि उसका एक्सक्लूसिव है, नोबडी कैन यूज दिस थिंग. अपने नेम से यूज नहीं कर सकते, वैसे आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट नाउ. सो लेट्स सी और लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिटेल मैनर. ओके, नाउ so here one more topic is given which is very very important and interesting also, resources and time. As you all know that time is the biggest thing here. अब हम बात कर लेते हैं कुछ भी रिसोर्सेस की, कि कोई भी रिसोर्स हो सकता है जो अभी रिसोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है राइट नाउ, बट आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू बढ़ जाए. नोबडी कैन सेड लाइक दिस, कोई सोच भी नहीं सकता. तो वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, लाइक योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. हो सकता है कि आपकी ग्रैंड मदर कुछ सजेस्ट कर रही हो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही. कमर्शियल वैल्यू यानी कि वो बहुत ज्यादा, उसको कोई प्रेज भी नहीं कर रहा, कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, उसको कहीं बेचा नहीं जा रहा उस आइडिया को. लेकिन अगर उसको पेटेंट करा दिया जाए और बाद में एक मेडिकल फॉर्म उसको हो सकता है कुछ फ्यूचर में उसी आइडिया को अपने तरीके से सेल करना स्टार्ट करे, तो उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू बन सकती है. वन पिक्चर इज गिवन, यू कैन सी द पिक्चर हियर, टर्मरिक पाउडर एंड फ्लावर, लाइक बेसन जिसको हम बोलते हैं. सो ये वाले जो बेटे हम वर्ड, एक हम टर्म यूज करते थे कुछ दादी माँ के नुस्खे एंड सो ऑन थिंग्स, जो ग्रैंड मदर्स वाले हमारे को रेमेडीज होते थे. सो उस टाइम पे अच्छे नहीं लगते जिस टाइम पे एक्चुअल में वो रेमेडीज मिलते हैं. बट राइट नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक खादी ग्राम का एक प्रोडक्ट्स होते हैं, हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं, वेयर द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, जो किसने यूज किए? दादी माँ के टाइम पे यूज किए गए. बट नाउ इट बिकम वेरी वैल्यूएबल. यस, सो सम थिंग्स और सम ऑब्जेक्ट्स मे बी बिकम economically valuable after some time. Okay, so let's understand with more 3 or 4 points.
सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, दिस इज द पॉइंट. तो कोई सब्सटेंस जो हमारे मोबाइल फोन्स पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक आइकन की तरह कभी दिखता था, बट कोविड के टाइम पर इट इज बिकमिंग लाइक रिसोर्स फॉर अस. Without Microsoft Teams, we are not able to contact with you or we are not able to take class with you. तो क्या हो रहा है ये? Yes, so वो चीजें after some time, so time ने even टेक्नोलॉजी ने दोनों चीजें ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया. सो बोथ आर रिलेटेड. यहाँ पर बोथ टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग फॉर टाइम and the technology. Yes, so both are related to the needs of the people. So people भी हमारे लिए एक important resource हो सकते हैं. And how the people are very important for us, this is also very important thing. Like अगर मैंने अभी आपको example दिया कुछ टाइम पहले भी कि आपके सामने ग्लास वाटर का ग्लास है, ठीक है, आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है और बहुत प्योर एयर है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल अवेलेबल है, बट ह्यूमन बींग्स ना होते, ह्यूमन बींग्स अपने आइडियाज नहीं देते, नॉलेज ना होती ह्यूमन बींग्स में, इन्वेंशंस ना होती, डिस्कवरीज ना होती, तो हमारे रिसोर्सेज नहीं होते. एंड देन ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स मोर डिस्कवरीज आर गोइंग टू बी हैपन, बिकॉज हम लोगों ने कुछ सोचा, इन्वेंट किया. तो आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, आप उसके 4 बनाने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज वी ऑल हैव नॉलेज, आइडियाज एंड ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास माइंड है. वी कैन convert the things into resources. Yes, so one more glossary is given here and the term is technology. So it is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. तो किसी भी एक नए तरीके से आप किसी भी चीज पे जब अप्लाई करते हैं और उसमें नई चीजें ऐड ऑन कर देते हैं तो इट इज बिकम लाइक अ टेक्नोलॉजी. तो हम उसको टेक्नोलॉजी बोल देते हैं. तो कोई भी चीज थी, अब हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स थी, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग यूट्यूब्स, वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम और बहुत सारे एप्स. तो हमने उसमें टेक्नोलॉजी फिट करके चीजों को और बेटर और इम्पोर्टेंट बना दिया. यस, सो one more example and one picture is given here, that great inventions that changed history. So yes, this is the first beginning. Wood log is given, then the one more picture of wheel जो initial wheel रहा होगा, then change और उसके बाद एकदम चेंज. तो ये चेंज हुआ. डिस्कवरी, इनिशियली किसी चीज की डिस्कवरी होती है एंड वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. सो जब व्हील इन्वेंट हुआ होगा 8th स्टैंडर्ड, उस टाइम पे व्हील का जब यूज हुआ तो इरिगेशन के लिए यूज हुआ एंड इरिगेशन के बाद हमने बहुत सारी चीजें उसको व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स में यूज किया गया. एंड आफ्टर सम टाइम कहाँ पर हम चीजों को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज कर दिया. यानी एक ही चीज थी हमारे पास, ओनली वन थिंग इज अवेलेबल, बट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नॉलेज we converted all these things into more better resources. So in this way we can say that it is like a very positive and the direct relation between the time and technology. Okay, so thank you so much for today's class, and the next topic we will cover in the next video lesson. And those who have liked this video, please subscribe our channel and share this video as soon as possible. Thank you so much.